السلام علیکم دوستو، میں محمد نوشاد عالم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ دوستو، ہم لوگ اسم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تعریف اور اس کے اقسام کا ذکر کریں گے، اور آخر میں بہت ہی اہم مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنے جینیس ہیں، ان سوالات کو حل کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں اس کی اطلاع دیں کہ آپ نے کتنے مشقی سوالات کو حل کیا ہے۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اس کی پہلی ہی قسم تھی ناؤن اور دوسری پروناؤن۔ ناؤن کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم پروناؤن، جسے اردو میں ضمیر اور ہندی میں سرونام کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں۔ ضمیر، جسے ہندی میں سرونام اور انگلش میں پروناؤن کہا جاتا ہے، جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے وہ، میں، تم وغیرہ۔ یہاں دھیان دیجیے گا کہ ضمیر وہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوا ہو، جیسے وہ، میں، تم وغیرہ۔ اس کو مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں آپ کو۔ اگر ہم کہیں، یہ 3 جملے ہیں یہاں پر، ایک یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ۔ پہلا ہے، نوشاد روز آتا ہے۔ نوشاد وقت کا پابند ہے۔ نوشاد کو آم پسند ہے۔ اب دیکھیے 3 جملہ ہے اور بار بار نوشاد نوشاد نوشاد، یہ جملے میں خوبصورتی کو ختم کر رہا ہے۔ اس لیے گرامر والوں نے یہ کہا کہ جب ایک بار کسی کے نام کا ذکر ہو جائے اور اسی کے بارے میں دوسرے یا تیسرے جملے میں کچھ کہنا ہو، تو وہاں بجائے نام کے ضمیر کا استعمال کیا جائے۔ تو نام کی جگہ پہ جو ضمیر استعمال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نام کی جگہ پہ جو لفظ استعمال، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ اب اسی کو ہم سدھار کر یوں کہیں کہ نوشاد روز آتا ہے، وہ وقت کا پابند ہے، اس کو آم پسند ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے، پہلے میں نوشاد کا ذکر ہوا، لیکن دوسرے جملے میں نوشاد کا ذکر نہیں، اس کی یہ جگہ پہ وہ کا استعمال ہوا، اور تیسرے جملے میں نوشاد کی جگہ پہ اس کو کا استعمال ہوا۔ تو دیکھیے یہاں وہ اور اس کو کس کی جگہ استعمال ہو رہا ہے؟ نوشاد کی جگہ پر۔ یہ نوشاد جو ہے اس کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ تو اس جملے میں وہ اور اس میں اس کو، یہ کیا ہوا؟ ضمیر ہو گیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ مرجع، جس اسم کے بدلے ضمیر استعمال ہو، اسے مرجع کہتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا، جس اسم کے بدلے ضمیر استعمال ہو، اسے مرجع کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں ایک مثال یہ ہے، نوشاد روز آتا ہے۔ دوسری مثال ہے، وہ وقت کا پابند ہے۔ تو وہ کس کی جگہ استعمال ہوا ہے؟ یہاں جو وہ ہے، وہ کس کی جگہ استعمال؟ ظاہر سی بات، یہ نوشاد کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ تو وہ یہ کیا کہلائے گا؟ ضمیر۔ اور نوشاد یہ کیا کہلائے گا؟ مرجع۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو کوئی اگر پوچھ دے کہ اس جملے میں وہ کا مرجع کون ہے، تو جواب ہوگا وہ کا مرجع یہ نوشاد ہے۔ یا اس جملے میں اس کو جو لکھا ہوا ہے، یہ پوچھ دے اس کو کا مرجع کون ہے، تو اس کا جواب ہونا چاہیے نوشاد۔ تو ضمیر اور مرجع میرے خیال سے کلیئر ہو گئی ہوگی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھی ضمیر کی تعریف۔ اب یہاں سے ضمیر کی قسموں کے بارے میں، ضمیر کے پرکار کے بارے میں بات کریں گے۔ ضمیر کی کل 6 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ضمیر شخصی،
ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामी, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर ताकीदी। दोस्तों बारी बारी से सभी को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ज़मीर शख्सी के बारे में। तो ज़मीर शख्सी जिसे हिंदी में सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी तारीफ़ ये है कि जो ज़मीर किसी शख्स, जगह या चीज़ के बदले में आए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे वो, मैं, तुम, हम, उसने, उसे वगैरह। इस पिछले यहाँ भी हम बता चुके हैं। देखिए यही चीज़ वहाँ पे है कि नौशाद यहाँ जो ज़िक्र हुआ है इसके लिए ज़मीर वो लाई गई है। तो वो क्या हो गई? ये ज़मीर हो गई, इसलिए कि ये इस्म की जगह पे इस्तेमाल किया गया है। चलिए दोस्तों आगे। और ज़मीर शख्सी की 6 किस्में हैं। इसका हम तफसील के साथ अलग से वीडियो बना देंगे। अगले वीडियो में हम इंशाअल्लाह ज़मीर शख्सी के बारे में तज़किरा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़मीर इशारी यानी ऐसी ज़मीर जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए, जिसे हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम और इंग्लिश में डिफिनिट प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा लफ्ज़ पर, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऐसा सर्वनाम जिससे जिसके तरफ इशारा किया जाए वो निश्चित हो जाए, उससे दूसरे मुराद ना हो। और इसी तरह आप डिफिनिट प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन कि जिसके तरफ इशारा किया जाए वो डिफिनिट हो, दूसरा नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम कहें ये लड़का खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए ये लड़का खूबसूरत है। तो ये से ये जो ये है इससे इशारा किसके तरफ किए? लड़का के तरफ। तो ये लड़का क्या हो गया? मुशारुन इलैह। और ये जो लफ्ज़ ये है ये क्या हो गया? इसमें इशारा या ज़मीर इशारा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी ज़मीर इशारा होगा उसके साथ मुशारुन इलैह होगा। मुशारुन इलैह उसे कहते हैं कि जिसके तरफ इशारा किया जाए। तो ये से किसके तरफ इशारा किया गया? लड़का के तरफ। तो लड़का हो गया मुशारुन इलैह और ये क्या हो गया? इसमें इशारा। तो इसकी तारीफ़ को हम पढ़ लेते हैं। ज़मीर इशारी जो ज़मीर किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे उसे ज़मीर इशारी कहते हैं। जैसे ये से भी इशारा किया जाता है, अगर करीब में हो तो ये, अगर दूर में हो तो वो, इसी तरह वही, इसी वगैरह। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिसे ज़मीर इशारी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ज़मीर मौसूला जिसे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन और हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दोस्तों इसकी तारीफ़ पहले पढ़ते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कि जिसकी वजाहत बात के जुमलों में ज़ाहिर हो, जिसकी वजाहत बात के जुमलों में ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? ज़मीर मौसूला कहते हैं। जैसे जो, जिस, जिन वगैरह। इसको यहाँ पर हम मिसाल से समझा रहे हैं। देखिए ये मिसाल को पढ़िए आप। जो अच्छा काम करता है उसे फल भी अच्छा मिलता है। यहाँ 3 चीज़ है। एक है जो, दूसरी चीज़ है अच्छा काम करता है और तीसरी चीज़ है उसे फल भी अच्छा मिलता है। इस जुमले में जो हुआ ज़मीर मौसूला। जो ज़मीर मौसूला अच्छा काम करता है इसे क्या कहा जाता है? सिला। इस जुमले को क्या कहा जाएगा? सिला। और इस जुमले को कहा जाएगा जवाब सिला। ध्यान रखिएगा इसमें लफ्ज़ जो है वो सिला और ये पूरा हो गया, सॉरी, जो है ज़मीर मौसूला, ये पूरा हुआ अच्छा काम करता है सिला, उसे फल भी अच्छा मिलता है, इसे बोला जाता है जवाब सिला।
बात समझ में आ गई होगी। तो कहते हैं कि ज़मीर मौसूला उस ज़मीर को कहते हैं कि जिसकी वजाहत यानी जिसकी क्लियरिटी बात के जुमलों में ज़ाहिर हो। जैसे जो अच्छा काम करता है, इससे क्या समझ में आया? कोई क्लियरिटी नहीं। जो अच्छा काम करता है, क्या अच्छा काम करता है तो क्या होता है? क्लियरिटी तो नहीं है। लेकिन बात का जुमला जो ये वाला है कि उसे फल भी अच्छा मिलता है, तो इससे इस जुमले की क्लियरिटी हो जाती है, वजाहत हो जाती है। तो जिसकी वजाहत बात के जुमलों में ज़ाहिर हो उसको क्या कहते हैं? ज़मीर मौसूला। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ज़मीर इस्तिफ़ामी माना ही से ज़ाहिर है। इस्तिफ़ाम माना होता है पूछना। तो इसी पे लफ्ज़ पर ही गौर कर लीजिए। ज़मीर इस्तिफ़ामी यानी ऐसी ज़मीर जिससे सवाल किए जाएं, पूछे जाएं, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछे जाएं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिससे इंट्रोगेट किया जाए यानी पूछा जाए। चलिए तारीफ़ को पढ़ते हैं। ज़मीर इस्तिफ़ामी वो ज़मीर जो पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, किधर, कौन सा वगैरह। जिस जुमले में भी ये लफ्ज़ आ जाएं, ऐसे लफ्ज़ हों जिनसे पूछा जाए, तो वो ज़मीर क्या कहलाएगी? ज़मीर इस्तिफ़ामी कहला जाएगी। एक तो मिसाल से समझते हैं। वहाँ कौन है, तो इसमें ज़मीर इस्तिफ़ामी कौन सा हुआ? ये लफ्ज़ कौन है। बिल्कुल क्लियर है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जिस लफ्ज़ से भी, जिस ज़मीर से भी कोई सवाल पूछा जाए तो उस लफ्ज़ और ज़मीर को ज़मीर इस्तिफ़ामी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी किस्म है ज़मीर की, ज़मीर तनकीरी। लफ्ज़ पर खाली गौर कीजिए। ऐसी ज़मीर जो नकरा का बोध कराता हो। नकरा किसे कहते हैं? कि किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा ना करता हो, किसी आम चीज़ की तरफ इशारा करता हो। तो जो ज़मीर किसी आम चीज़ की तरफ इशारा करता हो या आम शख्स की तरफ इशारा करता हो तो उसे ज़मीर तनकीरी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इनडिफिनिट प्रोनाउन, डिफिनिट नहीं इनडिफिनिट यानी कोई मुतय्यन नहीं है, बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल हो उस ज़मीर में, जिसे हिंदी में अनिश्चय सर्वनाम यानी निश्चय ना हो, उसका निश्चित ना हो, अनिश्चित यानी बहुत सारे चीज़ें उसमें शामिल हो। तो चलिए तारीफ़ को पढ़ लेते हैं। जो ज़मीर गैर मुअय्यन अशख़ास के लिए इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर तनकीरी कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। इसको मिसाल से समझते हैं। हम बोल देते हैं मिसाल कि कोई दरवाज़े पर आया है, तो लफ्ज़ कोई जो हम बोल रहे हैं, कोई दरवाज़े पे आया है, तो इसमें तो कोई ख़ास चीज़ है ये ना, कोई भी हो सकता है। ज़ैद, उमर, बकर, खालिद कोई भी हो सकता है। तो ये ज़मीर जो हुआ कोई, ये ज़मीर ख़ास हुआ या ज़मीर मारफा हुआ या ज़मीर नकरा हुआ? ये ज़मीर क्या हो गई? ज़मीर नकरा हो गई, इसलिए कि कोई से कोई ख़ास चीज़ समझ में नहीं आ रही है। इसी तरह किसी, मैं कहूँ कि पेन किसी के पास है, तो क्या किसी से कोई एक आदमी समझ में आ रहा है? ख़ास आदमी नहीं, नकरा समझ में आ रहा है, यानी कोई भी हो सकता है, किसी के भी पास हो। 10 आदमी बैठे हैं तो 10 में से किसी के पास। तो ऐसी ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशख़ास के लिए इस्तेमाल होती है उसे ज़मीर तनकीरी कहते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ वगैरह। ज़मीर की छठी और आखिरी किस्म है ज़मीर ताकीदी, यानी ऐसी ज़मीर जिससे ख़ुद ज़मीर की ताकीद की जाए, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए तारीफ़ को पढ़ लेते हैं। जो ज़मीर की ताकीद के लिए इस्तेमाल होती हो, यानी जो लफ्ज़ या जो ज़मीर ख़ुद ज़मीर की ताकीद के लिए इस्तेमाल होती हो उसे क्या कहते हैं? ज़मीर ताकीदी कहते हैं। जैसे ये तस्वीर मैंने ख़ुद बनाया है। लफ्ज़ पर ध्यान दीजिए, मैंने ख़ुद बनाया है। ये भी कह सकते हैं ये तस्वीर मैंने बनाया है।
तो यहाँ पे ज़मीर क्या है? मैंने। लेकिन इसी मैंने की ताकीद के लिए क्या लफ्ज़ ला दिए? खुद। तो ये लफ्ज़ खुद जो है मैंने की ताकीद कर रहा है, यानी कोई दूसरे ने ये तस्वीर नहीं बना, किसी दूसरे ने ये तस्वीर नहीं बनाई है, बल्कि ये तस्वीर मैंने खुद अपने से बनाया है। तो यहाँ लफ्ज़ खुद क्या हो गया? ज़मीर ताकीदी। बात समझ में आ गई? इसी तरह दूसरी मिसाल है, हमें अपना काम अपने आप करना है। हमें अपना काम अपने आप करना है। तो हमें, ये क्या है? ज़मीर है। अपने आप, ये क्या है? ये भी ज़मीर है, लेकिन ये वाली ज़मीर इस वाली ज़मीर की ताकीद को बयान कर रहा है। गोया अगर कोई सवाल पूछ दे कि इस जुमले में अपने आप क्या है, तो हम जवाब देंगे अपने आप इस ज़मीर की ज़मीर ताकीदी है। इसी तरह आगे, वो खुद ही चला गया। एक है वो चला गया, एक है वो खुद ही चला गया। तो यहाँ वो ये ज़मीर है और इसी ज़मीर की ताकीद खुद ही लफ्ज़ लाकर किया गया। तो खुद ही ये क्या हो गया? ज़मीर ताकीदी हो गई। दोस्तों बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से हम लोग मश्क़ी सवालात को हल करते हैं जो नहायत ही अहम है। इसमें कुछ मारूज़ी सवालात हैं और कुछ मौज़ूई सवालात हैं। मैंने दोनों सवालात को डाल दिया है। बनिस्बत मारूज़ी सवालात के मौज़ूई सवालात ज़रा सा मुश्किल होता है। तो दोस्तों दोनों को हल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मश्क हो सके। चलिए दोस्तों सवालात को शुरू करते हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 6, 3। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जीम, ज़मीर की 6 किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ज़मीर को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव विशेषण, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो इसका सही जवाब है इंग्लिश और हिंदी में ज़मीर को प्रोनाउन सर्वनाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिस इस्म के बदले ज़मीर इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर, मुशारुन इलैह, मर्जा, इशारा। ध्यान से जवाब दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है जी, मर्जा। जिस इस्म के बदले ज़मीर इस्तेमाल होता है, जैसे हम बताए थे वहाँ नौशाद रोज़ नहाता है वो आम खाता है, तो वो जो है ये किस इस्म के बदले में इस्तेमाल हुआ है? नौशाद के बदले में। तो जिस इस्म के बदले में ज़मीर इस्तेमाल हो तो उस इस्म को मर्जा और उस ज़मीर को ज़मीर कहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो लड़का खूबसूरत है, इस जुमले में वो क्या है? यानी लफ्ज़ वो जो इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर शख्सी, ज़मीर तनकीरी। तो इसका सही जवाब है कि वो क्या है? ज़मीर इशारी है। दोस्तों ज़मीर इशारी और ज़मीर शख्सी में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे ताकि इस कंफ्यूज़न को हम दूर कर सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? इस्म, सिफ़ात, मर्जा, ज़मीर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसने उस आदमी को मारा। ध्यान से देखिएगा, उसने उस आदमी को मारा। इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ ज़मीर है?
उसने उस आदमी मारा। तो इसका सही जवाब होगा अलिफ, उसने। इसलिए कि उस आदमी, तो ये दूसरा वाला जो उस है, ये वाला, ये क्या है, इसमें इशारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, इस जुमले में जैसी क्या है? मिसाल, ज़मीर शख्सी, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर मौसूला। इसका सही जवाब है कि जैसी ज़मीर मौसूला है। ज़मीर मौसूला दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसकी वजाहत बात के जुमले में होती है। तो जैसी करनी, तो जैसी करनी से क्या समझ में आया? कुछ नहीं। जैसे बोले वैसी भरनी, तो वैसी भरनी से ये वाला जुमला का माना तमाम हो गया। तो जो बाद वाला जुमला पहले वाले जुमले को तमाम करे और उसमें जो लफ्ज़ या जो ज़मीर इस्तेमाल हो पहले वाले जुमले में, उस ज़मीर को ज़मीर मौसूला कहते हैं। तो यहाँ जैसी इस्तेमाल हुआ है, तो जैसी क्या हो गया? ज़मीर मौसूला हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये थे मारूज़ी सवालात। अब यहाँ से कुछ हम लोग मौज़ूआती सवालात भी हल करेंगे, क्योंकि ये ज़रा सा मुश्किल होते हैं और इसका एक ही लफ्ज़ में जवाब होगा। शुरू करते हैं। ज़मीर शख्सी को इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा। तो ज़मीर शख्सी को इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन और हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो ज़मीर जो पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है क्या कहलाती है? वह ज़मीर जो पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है वो ज़मीर जो पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं। अगला सवाल है, हम ये काम खुद कर लेंगे। हम ये काम खुद कर लेंगे, इस जुमले में खुद क्या है? हम ये काम खुद कर लेंगे, इस जुमले में खुद, खुद क्या है? ज़मीर मौसूला है। इसलिए कि खुद जो है हम की ताकीद कर रहा है कि हम खुद कर लेंगे, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए खुद ये क्या हो गया? ज़मीर मौसूला हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये शख्स कुछ भी बोल देता है। ये शख्स कुछ भी बोल देता है, इस जुमले में कुछ कौन सी ज़मीर है? तो इसका जवाब है कि ये शख्स कुछ भी बोल देता है, इस जुमले में कुछ ज़मीर तनकीरी है। कुछ हम सुने बता चुके हैं कि कोई, किसी, कुछ, इसलिए कि इसमें कोई ख़ास चीज़ समझ में नहीं आ रही। कुछ तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए ये ज़मीर तनकीरी है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉकडाउन में जो जहाँ हैं वहीं रहें, इस जुमले में जवाब सिला कौन सा जुमला है? ध्यान से जवाब दीजिएगा। लॉकडाउन में जो जहाँ हैं वहीं रहें, इस जुमले में जवाब सिला कौन सा जुमला है? तो इसका सही जवाब है कि जवाब सिला वहीं रहें, ये जवाब सिला है। और जो है ये क्या है? ज़मीर मौसूला है। और जहाँ है ये क्या है? सिला है। तो ज़मीर मौसूला जिस जुमले में आएगा तो वहाँ तीन चीज़ होगी। एक तो ज़मीर मौसूला, उसके जस्ट सटे क्या होगी? सिला, और उसके बाद क्या होगा? जवाब सिला। तो यहाँ पे जवाब सिला क्या है? वहीं रहे। और सिला क्या है? जहाँ है। और ज़मीर मौसूला क्या है? जो। तो दोस्तों ये थे
آج کے مشقی سوالات اور اس کا حل، اور اگلے ویڈیو میں ہم ضمیر شخصی کی جو 6 قسمیں ہیں اس کو پیٹرن کے ساتھ بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ایک نہایت ہی اہم فرق جو ضمیر اشاری اور ضمیر شخصی میں لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اس فرق کو ہم اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو دوستو، اگلے ویڈیو تک ہمارا ضرور انتظار کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹ کیجیے گا اور ہماری اصلاح کیجیے گا، تاکہ میں اگلے ویڈیو میں اس کو سدھار سکوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔